Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Okay, so let's start the lecture. Last time we have finished with unit number 1 and we have started with unit number 2. Unit number 2 have two parts. First part is your logic, which is continued, but whatever we learned in the logic, we will learn in the terms of predicate and quantifiers. So first we will study what is predicate and what is quantifier. So predicates का हमने study किया था. What is predicate? Predicates define a certain property, that is, it will involve the variable like x and y, or you have three variable, then it predicate of three variable in the form of x, y and z, which define the certain property, and उसका एक domain होगा, उसका एक range होगा. So that is your predicate values. Okay. Now we have seen also the when the predicate value is true and what values for it is false. We have seen what is the truth set. Truth set क्या होता है predicate का? Wherever that predicates become true, those value of x is in the truth set. Okay, that truth set we have find out. Okay. Now let us find out the truth set of this predicate. Okay, Sir, screen is not visible. not visible. Is it for all Yes, or sir. okay? Let me reshare it. सर अब तक दिख रहा था, अब तो चला गया. Now is it visible? Yeah, sir, visible with me. Okay. No, sir. Just rejoin it. Mantasa. Okay, sir. Rejoin and then let us. Okay. Okay. Now, what do you mean by factor of 8? N is a factor of 8. What does it mean? Vivek, please unmute yourself when you are talking. Otherwise, keep yourself muted. Otherwise, if once more it is happened, Divesh, I will just throw you out of the meet. और वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए. The factor means it is a divisor. इसको हम लोग divisor भी बोलते हैं. For example, here factor of 8, if you are going to the actual definition, if you can write 8 is equal to a into c, then a is a factor of 8, a is a factor of 8, c is also a factor of 8, where a and c are integers. So those two integers which multiplying and giving you 8 will be the factors of 8. So n is a qn be the predicate, that is I am writing over here qn be the predicate, that n is factor of 8. So if you have domain equal to z plus, that means you are allowed to take factors only from the set of integer which are positive, set of positive integers. अगर मैं set of positive integers को domain लेता हूँ, so what will be the factors of 8? Positive factors of 8 क्या होते हैं? Which numbers divides 8? 2, Anyone? 4. 1, 2, 4. 1, then 2, 2,
4 and 8 itself. हाँ And 8 itself. Okay. If your domain is set of all integers, then what are the factors? ये तो होंगे ही, that is 1 to 4 8 तो होंगे ही, उसके साथ साथ factors और add होंगे. -1 is also a factor of 8, -2 is also a factor of 8, -4 is a factor of 8, and -8 is also a factor of 8. So if your domain is set of integer, you will have 4 more factors. ये already है plus ये. Okay. So if your set is set of integers, then you will get more factors. So let me admit the people. Okay. Now we move on to the quantifier. So predicate क्या होता है? कोई property define. Quantifier, as the word suggested, it will give me the number of things like कितने elements के लिए वो जो statement है वो true है. So दो type के predict होते हैं. एक होता है sum. अगर आपके डोमेन सेट में सम वैल्यूज के लिए वो ट्रू है तो हम लोग वो प्रेडिकेट यूज करेंगे. सम के लिए देयर एग्जिस्ट प्रेडिकेट हम यूज करेंगे. और अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो डोमेन के हर एक वैल्यू पे ट्रू है तो हम लोग फॉर ऑल का सिंबल यूज करेंगे. सो देयर आर टू सिंबल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज. द सिंबल दिस इज फॉर ऑल इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब क्या है कि आप जो भी डोमेन लोगे और आप जो प्रेडिकेट उस डोमेन पे डिफाइन करोगे वो प्रेडिकेट वो डोमेन के हर एक वैल्यू पे ट्रू होगा. वो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए ट्रू होगा. तो इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर से डिनोट करते हैं. एंड इसका सिंबल है फॉर ऑल. यू कैन ऑल्सो रीड इट एज for every or for each, for any, given any और for all. ये पांचों में से कोई भी अपने सेंटेंस के हिसाब से आप उसको रीड कर सकते हो. Then this symbol is known as universal quantifier. This symbol is known as universal quantifier. So for example, अगर मुझे ये एक स्टेटमेंट एक्सप्रेस करना है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, मतलब जो इंसान पैदा होता है वो मर भी जाता है. ऐसा कोई इंसान यहाँ पे पैदा नहीं हुआ जो अमर है. ठीक है. और ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल इन द फॉर्मल लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल इज इनफॉर्मल लैंग्वेज which we normally use in English. But to express this in the mathematics, what I will express, for all human beings x, x is a mortal. For all human beings x, x is a mortal. Or I will write in the set notation, that is, if my set H is the set of all human beings, this is set of all human beings, then we write this as for all x belongs to H, for all x belongs to H, x is mortal. That is, we express this sentence in the formal language. From informal language, that is every human being is mortal, we have expressed this sentence into the formal language. For all x belongs to H, x is a mortal. So this is how the conversion is done. This is how the conversion is done. So let us move on to the next. So what is the definition? Let Qx be the predicate and D is the domain of X. The universal statement is a statement in the form all X belongs to D, Q of X. It is defined to be true if and only if Qx is true for each individual X in D and
It is defined to be a false if and only if qx is a false for at least one x in T. The value of x for which qx is a false is called counter example to the universal state. अभी ये सब इतना बड़ा डेफिनेशन आपने देखा, बट मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं समझा होगा. So let us take the example to understand this definition. I will write the two statements. The first statement, for all x belongs to R, x square greater than or equal to 0. In the second statement, I will write for all x belongs to R, x square strictly greater than 0. Which of the statement is true and which of the statement is false? Is A true or false? True. Why A is a true? Is it true for every real number that is square is positive? Yes. So this statement is true because it is true for all values of. तो जब मैं बोलता हूँ for all values of x, तो मुझे हर एंड एवरी वैल्यू में कोई भी, मतलब आंख बंद करके एक रियल नंबर लाइन पे से एक नंबर उठाता हूँ, तो वो नंबर के लिए वो ट्रू होना चाहिए. ओके, अभी मैं सेकंड वाला स्टेटमेंट बोलता हूँ, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ यू जस्टिफाई व्हाई इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. Yes, why it is false statement? Why this statement is false? सोचो जरा क्या मैंने बोला यहाँ पे. It is defined to be true if and only if qx is true for all x in D. When I say all x in D, मुझे एक भी ऐसा x नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए false statement हो. अगर मुझे एक भी मैंने एक वैल्यू दिया रियल नंबर का जिसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स है. तो मेरा मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दिस x इज इक्वल टू 0. Is 0 is a real number? Is it belongs to the real number? 0 रियल नंबर का हिस्सा है, यह है. What is x square? x square equal to 0 है. It is, अगर मैं लिखूंगा it is strictly greater than 0, तो ये wrong है. I can write this 0 is greater than or equal to 0. यहाँ पे इक्वालिटी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, बट सेकेंड स्टेटमेंट में ये इक्वालिटी इंक्लूड नहीं हो रही. और एक ही एग्जांपल है यहाँ पे जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फिर भी ये फॉल्स हुआ. जैसे आपका एंड वाला स्टेटमेंट होता है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर को समझना है तो एंड वाला स्टेटमेंट समझना पड़ेगा. अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो ही एंड का स्टेटमेंट ट्रू होगा. When this P and Q is true, जब आप P and Q की बात कर रहे हो तो आपको P भी ट्रू चाहिए और Q भी ट्रू चाहिए. अगर मैं P और Q की बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या P भी ट्रू है, चलेगा, मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. अगर Q ट्रू है तो भी मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. बट जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही मेरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा. वैसे ही जब मैं फॉर ऑल यूज कर रहा हूँ, फॉर ऑल का मतलब है हर एक एलिमेंट के लिए वो ट्रू होना चाहिए. अगर मुझे एक भी एग्जांपल मिला जिसके लिए वो ट्रू नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला एग्जांपल मिला जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बट बाकी सभी एग्जांपल के लिए आप गिन भी नहीं सकते कितने रियल नंबर है, सभी रियल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है सिवाय 0. ओनली 0 इज द एक्सेप्शन. 0 is the
एक्सेप्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वैल्यू है जो स्टेटमेंट को फॉल्स बनाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर एग्जाम्पल। द वैल्यू which makes this second statement q of x is false is called a counter example। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप मुझे बताओ और एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। Is this clear? When this statement is true, if it is true for all the values, if it is false even for the one value, अगर एक भी वैल्यू के लिए false है तो वो स्टेटमेंट false है। Okay, so let us move further. Okay, let D is the domain दिया हुआ है। Consider the statement. How you will read this statement out loud? कोई भी एक जन बोलो ये स्टेटमेंट को कैसे रीड करेंगे? ये जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसे रीड करेंगे? For all x belongs to D, x square is greater than equals to x. For all x belongs to D, x square just greater than नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही मिस्टेक किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? मेरा ये जो स्टेटमेंट है वो हर एक डोमेन, डोमेन में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, वो पांचों के लिए ट्रू होना चाहिए, पांचों के लिए ट्रू होना चाहिए। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, यहाँ पे फाइनाइट सेट दिया है, तो जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ट्रू होना चाहिए। लेट अस चेक वेदर सबके लिए ट्रू है क्या। 1 स्क्वायर क्या आता है? 1, तो आई कैन राइट 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये ट्रू है। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? अरे फटाफट बोलो, 2 स्क्वायर 4. इट इज 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये भी सही है। 3 स्क्वायर 9 इज 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, करेक्ट है। मैं x स्क्वायर, Yes. ये जो स्टेटमेंट है वो हर एक एलिमेंट पे इवेल्युएट कर रहा हूँ। 4 स्क्वायर 16. 16. ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, यस। 5 स्क्वायर 25 इज 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 4 आएगा। इज 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यस। तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज हमने हर एक एलिमेंट पे चेक किया और हमने दिखाया कि वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, इसीलिए ट्रू है। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? ये क्या बोल रहा है? डी के लिए बोल रहा है। अभी सेम स्टेटमेंट हम लोग रियल नंबर के लिए बोल रहे हैं। क्या रियल नंबर में इक्वालिटी होल्ड करता है? देखो, अगर होल्ड करता है तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए दिखाना, बट अगर आपको यहाँ पे क्या बोला है, ऑलरेडी दिया है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको जस्ट एक एग्जांपल देना है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल where the statement will make you false? कहाँ, कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसपे वो नंबर का स्क्वायर वो नंबर से कम होगा? What does I want to show? I want to find, इसको फॉल्स दिखाने के लिए मुझे कोई ऐसा वैल्यू निकालना which x square is less than x। एक ही वैल्यू चाहिए मुझे, ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। मैं आपको 1000 वैल्यूज दे दूंगा इसका जिसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है, बट आपसे मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए। किस वैल्यू के लिए x स्क्वायर इज लेस देन x? 1/2. So let us see saying x is equal to 1/2.
What is x square? 1/4. And 1/4 is strictly less than 1/2. 1/4 का वैल्यू होता है 0.25 and 1/2 का वैल्यू होता है 0.5. If you take any number between 0 and 1, इस 0 and 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? उस ओरिजिनल नंबर से कम होगा. उसका स्क्वायर हमेशा ओरिजिनल नंबर से कम होगा. That is why I said मैं 1000 वैल्यूज दे सकता हूँ, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज दे सकता हूँ, फॉर विच दिस स्टेटमेंट डज नॉट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट के लिए वो बोलते हैं ना, आपको किसी को एकदम पॉइंट पे पकड़े है, वो पॉइंट पे इसमें पकड़ना है. जब आपको बोलेंगे ना काउंटर एग्जांपल देना है, तो मतलब क्या है, कोई भी एक एग्जांपल चल जाएगा मुझे ये फॉल्स करने के लिए. बट अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे सब कंडीशन में प्रूव करना है. तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो. ये जो मतलब बहुत सारे लोग जो है ना, ये लॉजिक को बहुत ही क्या बोलते हैं, लेनियंटली लेते हैं. ये लॉजिक क्या सिंपल है, आ जाएगा. बट वैसा नहीं है. लॉजिक इज लाइक अ बेस इन मैथमेटिक्स. अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है लॉजिक का, तो आप कोई भी प्रूफ लिख सकते हो. अगर बेस वीक है, आप भूल जाओ कि आप मैथमेटिक्स में प्रूफ लिखोगे. तो बेसिकली ये जो प्योर मैथमेटिक्स में आप जाओगे ना, द लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज अ स्पेशली विच finding a counter example is very tough. Okay, let us move on to the next quantifier. तो ये आपको समझा, अगर ट्रू दिखाना है तो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए. बट अगर फॉल्स दिखाना है तो एक भी एग्जांपल मिला तो चलेगा. अभी इसका उल्टा क्या होगा? एक भी एग्जांपल के लिए ट्रू है तो ट्रू है, और फॉल्स दिखाना है तो हर एक पे फॉल्स दिखाना है. ये उसका उल्टा होगा. तो फॉर ऑल का रिवर्स होता है देयर एग्जिस्ट. और इसका सिंबल क्या है? उल्टा ई. दैट इज देयर एग्जिस्ट सिंबल. दिस सिंबल डिनोट्स द existential quantifier. So when I say existential quantifier, I am talking about existence. अगर एक भी एग्जांपल मुझे मिल गया जिसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो मेरा काम खत्म. मैं बोल दूंगा कि वो हर एक, मतलब वो ओवरऑल इन जनरल ट्रू है. So when I use existential quantifier, I am only interested in finding one example for which the statement is. When I taking universal quantifier, I want that statement to be true for all the values in the domain. When I use existential quantifier, I want that statement to be true for only one value. Even if it's true for one value, I am satisfied. Okay, ऐसा बोलते हैं ना, अगर एक भी बच्चा मैथ्स में 100 में से 100 लाएगा, I will be very happy. So that time I am using the existential quantifier. अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट करता हूं कि मेरे सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होने चाहिए, दैट टाइम आई एम यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर. क्योंकि मुझे हर एक बच्चा पास होना चाहिए, और मुझे एक भी बच्चा एकदम परफेक्ट स्कोर लाया 100 आउट ऑफ 100, आई विल बी हैप्पी. दैट टाइम आई एम यूजिंग existential quantifier. Whereas in the first statement, when I want all my students to be passed, I am using universal quantifier. Okay, so that is the difference between existential and universal. Okay, so existential में क्या बोल रहा हूँ कि there exists a student in maths 140. It is a code. Like आपका जो FYIT का कोड है, अगर आप सिलेबस में देखोगे, discrete mathematics is USIT 104, something like that. So ये भी उनका वो यूनिवर्सिटी का कोड है. There exists a student which has taken maths 140. So there exists a person such that P is a student of math 140, or you will write it as there exists P belongs to P such that P is a student of math 140. So when I use this symbol, I want even if one satisfies, one student satisfies, I am happy. I am saying that this statement is for all. I want all this to be true. सबके लिए वो ट्रू होना चाहिए. There exists, एक के लिए भी ट्रू हुआ तो चलेगा. So that is the difference between for all and there exists, and they are negation of each other.
So जब भी कभी आपको निगेशन पूछेंगे, इसका निगेशन होगा फॉर ऑल का निगेशन पूछेंगे, इसका निगेशन होगा देयर एग्जिस्ट, दे आर निगेशन ऑफ ईच अदर. सो जैसे मैंने बोला था, an existential statement is a statement in the form there exists x belongs to d such that q of x, it is said to be true if and only if it is true for at least one. अगर एक भी एलिमेंट के लिए ट्रू है तो वो इन जनरल ट्रू है. और अगर फॉल्स प्रूव करना है तो आपको फॉल्स किसके लिए दिखाना है? सब एलिमेंट्स के लिए फॉल्स दिखाना है. तो अगर ट्रू प्रूव करना है तो एक एलिमेंट के लिए ट्रू प्रूव कर दोगे, काफी है. अगर फॉल्स प्रूव करना है तो हर एक एलिमेंट के लिए फॉल्स. उसमें उल्टा था. क्या उल्टा था? अगर आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना था फॉर ऑल का, तो हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव करना था. और फॉल्स एग्जांपल क्या होता है? इसमें उल्टा है. ट्रू प्रूव करना है तो एक ही एग्जांपल के लिए प्रूव किया चल जाएगा. फॉल्स प्रूव करना है सभी एग्जांपल के लिए फॉल्स दिखाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्ट. अभी इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं तो दैट अपना क्लियर हो जाएगा. ओके, कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल. इज देयर एनी m belongs to z plus such that m square is equal to m? Can you give one example? And if I have written this statement in little bit modification, is there exist m belongs to z such that m square is equal to m? अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखता तो मुझे दो एग्जांपल मिलते, और इसके लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल है. Can you give me example for which value of m I will get m square is equal to m? कौन से वैल्यू? 0. 0 is not a positive integer. मैं 0 का एग्जांपल इस केस में दे सकता हूँ, ये One. केस में दे सकता हूँ. 1. और ये केस के लिए मैं क्या लूंगा? m is equal to 1. So I will write a, take m is equal to 1, then m square is equal to 1, which is equal to m. So this m belongs to z plus. Okay, I want that 11 to be in z plus. That's why I have taken m is equal to 1. Otherwise, अगर मुझे ये वाला सेकेंड टाइप का स्टेटमेंट देते, सेकेंड वाला स्टेटमेंट देते, तो आई कैन टेक m इज इक्वल टू 1 और आई कैन टेक m इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया. सो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. व्हाट इज बी स्टेटमेंट? बी स्टेटमेंट को मुझे फॉल्स दिखाना है. तो मैंने क्या बोला कि एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा मुझे? ये जो ई दिया हुआ है, डोमेन ई दिया हुआ है, उसके हर एक एलिमेंट पे वो फॉल्स दिखाना है. So I want to prove that 5 square. What is 5 square? 25 not equal to 5. तो 5 के लिए फॉल्स दिखाया, 6 के लिए फॉल्स दिखाना है. 6 square 36 not equal to 6, फॉल्स हुआ. देन थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है? 7 square is equal to 49 not equal to 7, थर्ड स्टेटमेंट के लिए फॉल्स हुआ. 8 square 64 नॉट इक्वल टू 8, ये भी फॉल्स हुआ. तो चारों के लिए फॉल्स हुआ, इसीलिए वो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. तो पहले वाले में इसका उल्टा किया था. जब ट्रू दिखाना था तो सबके लिए ट्रू दिखाया, एंड जब फॉल्स दिखाना था तो एक के लिए ही फॉल्स दिखाया. इसमें क्या है? ट्रू दिखाना है तो एक के लिए ट्रू दिखाया तो भी चल जाएगा, फॉल्स दिखाना है तो सबके लिए फॉल्स दिखाना. सो यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस between universal and existential quantifier? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Let's move on to formal and informal language. So consider this statement. Can you read this statement aloud? A B C आप कैसे रीड करोगे? A का पहले आंसर करो. How you will read?
For all x belongs to R, x square is greater than equals to 0. व्हाट अबाउट बी? सिर्फ मंतशा ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी आंसर करना चाहिए. For all x belongs to R, x square is not equal to -1. करेक्ट. एंड थर्ड स्टेटमेंट. There exists a value of m that belongs plus such that m is equals to square is equals to m. ओके, so good that you have read it one. So पहला वाला देखते हैं. पहले वाले का मैं ऐसे ट्रांसलेशन कर सकता हूँ. एवरी रियल नंबर हैज अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर, और all real numbers have non-negative square, or I can translate it like this: any real number has non-negative square, or I can write the square of each real number is non-negative. ये चारों के चारों स्टेटमेंट मुझे इनफॉर्मल लैंग्वेज में सेम मीनिंग देंगे. जो ये स्टेटमेंट मीनिंग दे रहा है वही मीनिंग ये चारों के चारों स्टेटमेंट है. इज देयर एनी डाउट इन दिस 4 स्टेटमेंट एंड 1? No, sir. Okay. Similarly, there are different ways to write the second statement. For example, I can cite all real numbers have square that do not equal to -1, or I can read a statement like no real numbers have square equal to -1. Okay, तो ये दो तरीके हैं जिससे मैं ये कर सकता हूँ. और मैं क्या सकता हूँ, given any real number x, I have x square not equal to -1. So this is when I don't use this for each or for all. I am using normal English language. I am writing the statement like this. Similarly, the third statement: there exists a positive integer whose square is equal to itself. That means m square is equal to m, without using variable, without using symbol. When I write the statement, it is informal language, and when write a statement using the symbol, it is formal language. Or we can find at least one positive integer which is equal to its own square. Or I can write some positive integer equals its own square, or I can write some positive integer equals to their own square. That I can use any of these 4 forms to translate this from formal into informal. Similarly, informal can be translated into formal. Can you translate this into the formal language, that is using you can use the symbols, variables and quantifiers. कैसे ट्रांसलेट करोगे? पोस्ट ट्रांसलेट में करके देता हूं. फॉर ऑल t belongs to capital T such that t has 3 sides, where capital T is a set of all triangles. Capital T is a set of triangles. What about the second statement? No dogs have wings. वो तो दिया हुआ है, आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे सिंबॉलिक फॉर्म में? That exists. फॉर लेट्स सी, डॉग के लिए डी यूज करेंगे. फॉर ऑल डी बिलोंग्स टू कैपिटल डी सच दैट डी हैज नो विंग्स. तो ये क्या हुआ, हमने सिंबल यूज किए, ये क्वांटिफायर यूज किया, वेरिएबल यूज किया, सेट यूज किया. तो ये जो है ये कौन सी लैंग्वेज है? फॉर्मल लैंग्वेज. और ये वाली लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? इनफॉर्मल लैंग्वेज. व्हाट अबाउट दिस थिंग? सम प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्ड. यू आर गोइंग टू टेल मी यूजिंग क्वांटिफायर्स एंड वेरिएबल. कौन सा क्वांटिफायर आएगा यहाँ पे? There exists. देयर एग्जिस्ट प्रोग्राम के लिए स्मॉल p यूज करते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल P such that small p is structured. Small p is structured. So this you have to take care of. यहाँ पे ना ये जो है ये कौन से लैंग्वेज में have, और यहाँ पे भी have है.
यहाँ पे आर है, बट मैं जब स्ट्रक्चर कर रहा हूँ उसको इज में स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, मतलब मैं ये जो मल्टीलिंगुअल है, यू कैन से दैट प्लूरल फॉर्म है, विंग्स और आर स्ट्रक्चर्ड, means I am talking about multiple things at the same time, whereas I am here, I am generalizing it, I am taking only one value. All triangles have three sides. मतलब क्या, इसका सेम मतलब है कि मैं अगर एक ऐसा बॉक्स लूंगा, उसमें सभी ट्रायंगल्स डाल दूंगा और मेरे पट्टी बांध के, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसके लिए थ्री साइड्स है, तो भी मैं सेम ये कर रहा हूँ. When I am making a statement, for example, all students in FYIT are at least 16 years old. Are at least 16 year old. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आंखों पे पट्टी बांध रहा हूँ, आपका जो क्लासरूम है उसमें से 52 बच्चों में से एक बच्चा उठा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ इस बच्चे के लिए, इस बच्चे का एज 16, तो भी मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पट्टी बांधता हूँ तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बच्चे को चूज कर. सिमिलरली यहाँ पे भी जो लिखते हैं तो एक के लिए लिखते हैं. आई एम चूजिंग वन पी बिलोंग्स टू द होल सेट फॉर विच दिस प्रॉपर्टी इज. So when I writing in the formal language, I am taking only one value, which is the general value, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, प्रोग्रामिंग में भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज करते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है जो बुक में दिया हुआ है, where P is a set of all program, D is a set of all dogs. Okay, so you can write like this. Then we move on to the universal conditional statement. कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है आपका ओरिजिनली, जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है आपका, जनरल कंडीशनल स्टेटमेंट इज P implies Q. इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जब आप प्रेडिकेट में यूज करते हो वो कैसे लिखते हो, P of x implies Q of x. दिस फॉर्म इज योर प्रेडिकेट फॉर्म. P implies Q का सेम फॉर्म है Px implies Qx. And when I use universal, that means there exists for all आना चाहिए उसमें. So जो universal statement का फॉर्म होता है वो ये फॉर्म का होता है, for all x belongs to D such that P of x implies Q of x. तो ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, यूनिवर्सल conditional statement. This form is universal because it use for all symbol and conditional because it use implication. So it is universal conditional statement. So let us take the example of this. For all x belongs to R, if x is greater than 2, then x square is greater than equal to, greater than, strictly greater than 4. What is this form? Is it in this form, for all x belongs to D, Px implies Qx? Yes or no? Yes. Okay. तो इसको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा मैं, if a real number is greater than 2, then its square is greater than 4. This is one way. Second way क्या है, whenever a real number is greater than 2, its square is greater than 4. ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बाद में बात करता हूं मैं. The square of any real number greater than 2 is greater than 4. इसके भी बारे में बात करते हैं. The square of all real number greater than 2 are greater than 4. Okay. Consider मैंने जो स्टार मार्क किया है और जो थर्ड वाला स्टेटमेंट स्टार मार्क किया, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या पढ़ के आपको ये लगता है कि वो यूनिवर्सल है? Is there any of where we use the word all or for every, ऐसा कुछ यूज किया है? पहला वाला सॉल्यूशन पढ़िए, कहीं पे भी आपको यूज किया हुआ दिख रहा है all or for every? No. So it is purely I am writing the conditional form. Yes or no?
So universal conditional statement can anytime be changed to the conditional statement. Also, it can be anytime will change to the universal statement. So when I take out this universal conditional, उसको मैंने क्या कन्वर्ट किया है, इधर सिर्फ कंडीशनल में उन्होंने कन्वर्ट किया, वेयर एज इन द थर्ड देयर इज नो पार्ट ऑफ द कंडीशन, इफ देन यूज ही नहीं हुआ है. तो मैं जो थर्ड वाला स्टेटमेंट बोलूंगा कि वो पूरे का पूरा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. यस और नो? So you can think of this universal conditional statement can be converted into purely conditional statement. It can also converted to purely universal statement. थर्ड पार्टी any यूज हुआ है मतलब वो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फॉर ऑल, फॉर एवरी और फॉर ईच, गिवन एनी, इस टाइप के वर्डिंग्स जब आते हैं तो वो क्या है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशन दिया होता है. whenever is also a form of if. whenever जब मैं बात करता हूँ तो वो भी if का ही एक फॉर्म है. तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वहां पे कहीं पे भी if else नहीं दिया है, वो प्योरली यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. तो एनी टाइम यू कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम यूनिवर्सल कंडीशनल टू जस्ट कंडीशनल और जस्ट यूनिवर्सल. राइटिंग यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉर्म. कैन यू राइट दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म? आपका फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल कंडीशनल का फॉर्म क्या है? In this form, for all x belongs to D, if P of x then Q of x. Can I write like this? ये स्टेटमेंट को मैं फॉर्मली कैसे लिखूंगा? गलत हुआ तो चलेगा, आंसर करो. What do you think? I don't want correct answer, I want just answer. I want to convert in this form. For all x belongs to D, where D is the domain, if P of x some property holds, then some another property holds. What about the first thing? For all x belongs to real number, if x is integer, then x is rational number. So let us write in symbol. For all x belongs to the real number. Real number को कैसे denote करते हैं हम लोग? For all x belongs to R, comma, if x is an integer, मतलब क्या है? If x belongs to capital Z, then x belongs to set of rational number Q. Set of rational number denoted by Q. This is your P of x, this is your Q of x, and R is nothing but your D. So for all x belongs to D, if P of x, then Q of x. What is second statement? Convert this into this particular form. Let us write for all B, comma, I don't define any set over here. For all B, if B is byte, then B has 8 bits. B has 8 bits. What is byte? What is bit? You are the math IT students. You should know. What is byte and what is bit?
अरे डी में आरती मैम क्या पढ़ाती है आपको? जब मैं बात करता हूँ बीट की, it is the memory location which can either hold 1 or it can hold 0. That is 2 value. And when I combine this 8 byte, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, I am writing the byte. When you define any integer, it require 8 bytes. जब मैं शॉर्ट टाइप इंटीजर डिफाइन करता हूँ 8 बाइट्स यूज करता हूँ. द फर्स्ट साइन it is for sign. The first bit in the byte is for sign and this bit is for your storing of the integer. ये जो 7 bits है उसमें आपका इंटीजर स्टोर होता है. हाईएस्ट इंटीजर कौन सा स्टोर होगा? 7 times 1. What is 7 times 1 in the binary form? 2 raised to 8 minus 1. 2 raised to 8 minus 1 can be written as 1 1 1 1 1 1 1 1. 2 raised to 8 is yes. Anyone remember what is 2 raised to 8? अरे ये अगर आपको डी पढ़ना है तो ये पावर्स याद करने चाहिए आपको. 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, then 8, then 16, then 32, then 64, then 128, then 256. 256. So 2 raised to 8 is 256. 256 minus 1, that is 255. So 255 is the highest value you can store in this particular byte. When you consider the byte, each byte will have 1 or 0. First is representing the sign. जो भी साइन है पॉजिटिव है निगेटिव है वो यहाँ पे होगा, स्टोर होगा फर्स्ट प्लेस पे. और जो रिमेनिंग 7 है, 7 बिट्स है, उसमें 1 या 0 का वैल्यू जब फिट करोगे तो आप -255 to 256 जो भी है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, उतने इंटीजर्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो अगर वो 8 बाइट है, 8 बिट्स आपके पास है. तो दिस इज द मेमोरी लोकेशन. So ये B किसमें होगा? B is for all memory location. If that memory location is having byte, then it has 8 bits. If it is in MB, what is how many bytes in 1 KB? 1 KB में कितने bytes होते हैं? 1000. Is it 1000? Oh, sorry, 634. 1024, which is power 2 raised to 10. 2 raised to 10 is 1024. That many bytes are there in 1 KB. 1024 KB is equal to 1 MB, megabyte. Kilobyte, megabyte, then what? Gigabyte, terabyte. टेराबाइट के आगे अभी तक, टेराबाइट्स के आगे अभी तक गया नहीं कंप्यूटर का आपका स्पेसिफिकेशन. ठीक है. What about C? Let's come back to the maths. What about C? No fire trucks are green. For all T belongs to capital T, where T is a set of trucks, if T is a fire truck, then T is not green. If T is a fire truck, then T is not green. Okay, so this is how conditional, universal conditional form में हमने ये जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेस किया. That's it. Okay. So ये बहुत important है. Let's take this particular thing and then we will stop. The variable, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी यूज किया है वो वेरिएबल यूज किया. When I write for all x belongs to R, okay, what do I mean?
I can say that x is taking any value of real number. X can be replaced by the any real number in you have. Let me write one program, then your this concept of variable will get clear. Okay, I am writing one program. You are going to tell me the output. I will start with C में तो सबने पढ़ा है. What will be the output? What is the output of first program? Anyone? What is the output of first program? Anyone? Sir, 1. Why it is 1? सर डिवाइड किया उसको 2 को परसेंटेज इसलिए. आपने printf ऑपरेटर नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है आपने अभी नो तक? सर, नो तो सर. आपने क्या क्या पढ़ा है सी में? सर सी पढ़ा नहीं है सर अच्छे से, दूसरी लैंग्वेज है सिर्फ थोड़ी बहुत. अच्छा, तो आईपी में क्या पढ़ते हो? अभी भी स्टार्ट किए सर. सर पढ़ा है हमने, बट But what? a plus b equals to 6. हाँ, तो 6 का वैल्यू प्रिंट एफ मतलब क्या? वो प्रिंट करता है वैल्यू. कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? a प्लस बी का वैल्यू प्रिंट करेगा. सो %d स्टैंड्स फॉर द ये कि प्रिंट एफ का जो फॉर्मेट है कि वहां पे जहां पे भी %d दिखेगा वहां पे वो इंटीजर का वैल्यू प्रिंट करेगा. एंड मतलब प्रिंट एफ का फॉर्मेट होता है ऑपरेशन स्ट्रिंग एंड देन नंबर ऑफ वेरिएबल. अगर मैंने %d दो बार यूज किया है, %d इज %d, तो पहले वाले %d पे वो पहला वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज a कॉमा b. अगर मैंने लिखा है तो पहला वाला वैल्यू पहले %d पे प्रिंट करेगा एंड देन सेकंड वाला जो वेरिएबल है उसका वैल्यू जो है सेकंड वेरिएबल. तो एज यू आर पॉइंटेड आउट, इसका आउटपुट होगा 6. द आउटपुट इज 6. व्हाट अबाउट दिस? इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट 6. इसका भी आउटपुट 6. व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे तो मैंने Variables are different. वेरिएबल आर डिफरेंट, बट इज दैट इम्पोर्टेंट? मैं a एंड b से डिफाइन करूं वेरिएबल को या x एंड y से डिफाइन करूं, मुझे आउटपुट तो सेम मिल रहा है. मुझे आउटपुट से मतलब है ना, मुझे थोड़ी मतलब है कि मेरे प्रोग्राम में क्या लिखा है. वो यूजर एंड पे दिखेगा भी नहीं आपने प्रोग्राम क्या लिखा है. वो प्रोग्राम तो बैकग्राउंड में रन होगा. यूजर इज इंटरेस्टेड ओनली इन दिस पार्ट. यूजर इज इंटरेस्टेड इज ओनली इन दिस पार्ट. व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट करेक्ट मिल रहा है कि नहीं? अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड. ओके,
If x is greater than 2, x square is greater than or equal to 4. तो x क्या होता है? Acts like a variable. जैसे आपने प्रोग्राम में यूज किया, a को असाइन किया वैल्यू 2 and 4, b को असाइन किया, वैसे हम लोग क्या करते हैं, x को असाइन वैल्यू करते हैं. x is equal to 3. अगर 3 ने ये सेटिस्फाई किया, 3 is greater than 4, then ये ट्रू होगा. 3 square is greater than 4. Okay. So again I can change the value. x का वैल्यू मैं अगर 4 रखूंगा, so 4 is greater than 2, 4 square is greater than 4. So what I am doing over here in the mathematics is same like a programming, that this variable is just a placeholder. So I can rewrite this statement, if y is greater than 2, then y square greater than 4. Is this statement makes any difference than this statement? ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है क्या? No, sir. No, sir. Only very ओके. सिमिलरली जब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स टेक अ बैंक प्लेज एंड देन आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. डू यू नो द डेरिवेटिव ऑफ cos x? Minus sin x. Derivative of cos x is minus sin x. What if I take d by dy of cos y? minus sin y. Minus sin y. Or I take d by dA of cos a minus Sin a. sin. Cos A. सिमिलरली मतलब क्या है, मेरा वेरिएबल कौन सा है वो फर्क नहीं पड़ रहा. वो कब पड़ेगा, ये जो वेरिएबल है वो कब पड़ेगा, जब मैं ऐसा लूंगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन y? d by dx ऑफ साइन y क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos y. Cos y. dy by dx. Why I am taking dy by dx over here? Because यहाँ पे वेरिएबल अलग है, ये वाला वेरिएबल अलग है, तो चेन रूल अप्लाई करूंगा. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी वेरिएबल y था, तो यह मैं डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. यहाँ पे a है वेरिएबल, यहाँ पे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आंसर है. बट यहाँ पे क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो सेम कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल जो होता है वो मैथ्स में होता है. आपका वेरिएबल इज जस्ट अ डमी, इट इज एक्ट एज अ डमी. फॉर एग्जांपल, सिमिलरली integration of x square is x cube upon 3 plus c. Integration of y square dy is y cube upon 3 plus c. So anytime if I have x square dx, I can the same integral I can write t square dt. The variable acts only like a dummy. Okay, so this concept is important in logic also, in mathematics also, that the variable is just a placeholder. उनका वेरिएबल कौन से नाम से डिफाइन किया है, उसका आउटपुट से कुछ लेना देना नहीं है. उनका आउटपुट से कुछ लेना देना नहीं है. ओके, सो लेट अस स्टॉप ओवर हियर. ठीक है, in the next lecture we will continue. Also one more announcement. There will be no lecture tomorrow. Okay. Directly lecture will be on Saturday. Okay. और कुछ संकेत आपको कुछ करना था? हाँ सर, वो